Assalamu alaikum, everyone. As it's been described by ma'am there, my name is Shahrul Jan, and I'll be taking up today's session. Basically, this session is all about your last moment study guide sort of a thing. It's going to be a revision skill, that would be there for you if you need to obviously review it just before your exam, because the agenda of this particular webinar is to address all of those problems that are commonly found, or for example, there's certain questions which students do ask at the very last moment कि जो है वो सर एक particular topic है, what do you need to address in that particular topic, so for that reason जो है वो this has been planned out, and everything is going to be available for you, the recordings and everything, so you can obviously watch it whenever you want to. Now, the purpose and the agenda basically would be that I'm going to be walking you through the syllabus, the entire syllabus, as much as I can cover. Obviously, I'll try to cover all of it. And the questions which are going to be there with respect to, Cambridge pattern and Cambridge exams which actually covers IGCSE and O-Level 7707, right? And all of you know that you've got your exam a couple of days from now, or usme paper 2 hai. So this basically video would be covering all of those things with respect to paper 2. Okay, let's start with the very first and the foremost thing, which is the paper pattern. ठीक है, आप सबको ये पता होना चाहिए what paper pattern you're going to be experiencing and what you're going to be seeing in your exam, on that particular day. Every one of you knows, I know every one of you appearing for this exam knows that this paper basically is of 100 marks, right? And it has 5 questions that you'd be tested. Every question is going to be of 20 marks each, which is why it makes it, the total makes it 100. And you've got 1 hour and 45 minutes for this particular paper. Okay, having said that, अब यहाँ पे we need to divide and see, and we need to understand कि what pattern does the examiner basically form, और वो उसी particular pattern में जो है more or less, obviously the changes that can be made, but without exceptions being made, एक certain pattern है जो follow होता है for every exam that is being tested, IGCSE and O-Level accounting. अब क्योंकि ये दोनों same pattern पर आ गए हैं, so there's no difference at all. In terms of the syllabus that is going to be tested, and every question having the same marks and pattern be same hoga. Okay, having said that, I'll straight away jump to the questions जो normally topic wise जो आपको test होते हैं. I'll show you the latest exam as well जो अभी जो है वो February-March वाला जो हुआ था 2023 का. You need to keep that paper in front of you as well. और क्योंकि I've been जो है वो lately getting a lot of queries to the fact कि सर कुछ important topics बता दें. There's so many things जो आप जो है वो obviously you figure it out कि यार अच्छा ऐसे जो है वो topic test हुआ है तो अब जो है वो next time में कैसे होगा. But anyhow, I don't believe in giving guesses या जो making guesses for that reason. But still there's certain trends जो आप उसमें set कर लेते हो. All right, so when you talk about question 1 in this particular exam, आप लोगों को बहुत केयरफुली जो है वो ये जो टॉपिक्स अब मैं नेम कर रहा हूँ और इन टॉपिक्स में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इन चीज को प्लीज जो है वो जॉट डाउन कर लीजिएगा, एंड यू नीड टू गो थ्रू देम एज योर लास्ट जो है वो मिनट रिवीजन और व्हाटएवर द केस इज, राइट? अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन, I've got excuse me, I've got notes on every single topic. If you want to reach out to me for these notes and stuff, you can obviously जो है वो get back to me on my number, वो आपको provided होगा in the details below. Okay. अब question 1, yes, question 1 is usually tested on double entry bookkeeping and books of original entry. ठीक है? Keep that in your mind. और books of original entry में जो है वो I refer to cash book as well as जो है वो आपकी bank reconciliation statement भी इसी में जो है वो आपके साथ intact हो जाती है. ठीक है? अब cash book being one of the most common topic जो आपको question 1 में टेस्ट होता है usually. If you look at your past examination जो है वो papers, उसमें आप देख सकते हो कि जो है वो cash book पर बहुत ज्यादा 80% of the time जो है वो cash book पर question आता है. If not cash book,
तो देन दे आस्क यू क्वेश्चंस ऑन डबल एंट्री टी अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स पर आपको क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेजर अकाउंट्स, व्हाट डू आई मीन बाय लेजर अकाउंट्स? लेजर अकाउंट्स से मतलब ये है कि ऑब्वियसली वो दोज कस्टमर्स एंड सप्लायर्स के जो टी अकाउंट्स बनाता है, आपको पास पेपर में बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस पे। कस्टमर्स एंड जो है वो आपके सप्लायर्स के जो टी अकाउंट्स हैं, आपने उन पर भी बहुत कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। इफ एनी वन ऑफ यू हैज अ प्रॉब्लम डबल एंट्री पे, मुझे बता दीजिएगा, आई विल एड्रेस दोस क्वेश्चंस एज वेल। लेकिन डबल एंट्री आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि ओ लेवल्स में जो है वो क्वेश्चन 1 में डबल एंट्री जो है वो आपको हमेशा टेस्ट होती है। सही हो गया। अच्छा, अब कमिंग टूवर्ड्स द फैक्ट कि कैश बुक जो है वो अब कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितनी ज्यादा आपको जो है वो प्रैक्टिस करनी है इस पर। यस, इट इज इंपॉर्टेंट टू एन एक्सटेंट, जहां पे सबसे ज्यादा टेस्ट होता है। अभी February March 2023 में, which was the last exam that was conducted जो है वो on the syllabus, उसमें उन्होंने कैश बुक ही पूछा हुआ है, ठीक है। I'll show you the question. अब उन्होंने कैश बुक पर क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया है, ओके। अगर कैश बुक पर क्वेश्चन पूछ लिया है तो डू यू एक्सपेक्ट टू गेट आस्क्ड कैश बुक अगेन? यस, आपको कोई इतना जो है वो ऐसा रूल नहीं है कि वंस यू से कि जो एक टॉपिक टेस्ट हो गया तो इट कैन नॉट बी टेस्टेड अगेन। उसमें रेपिटेशन हो सकती है, इट्स नॉट दैट कि उसमें रेपिटेशन नहीं हो सकती, बट द थिंग इज कि वी कैन एक्सपेक्ट अदरवाइज एज वेल कि एग्जामिनर जो है वो थोड़ा डिफरेंटली भी अब टेस्ट करेंगे। सही हो गया। मैं बहुत ज्यादा रेट कर रहा हूँ, जो अगर आप मेरी प्रेफरेंस पूछो तो यू गोइंग टू गेट अ क्वेश्चन ऑन लेट्स से पेटी कैश बुक को इसमें ऐड कर लो और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। आपने इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली और बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से जो है वो देख लेना है। सही है। अब हर टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट यू गाइस मेक। लेट्स टॉक अबाउट कैश बुक एंड पेटी कैश बुक कलेक्टिवली, क्योंकि आपको पता है इसमें जो है वो ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं। Petty cash book में what I've seen is कि you guys miss out on the fact कि the very first transaction that's supposed to be recorded is the impressed amount restored, right? अब impressed amount जो restore होती है वो आपको क्वेश्चन में बता रहा होता है, he explicitly tells you that this is the impressed amount, ठीक है, that needs to be restored, और वो जो है वो आपको वो सारी की सारी उसकी डिटेल्स भी बता रहा होता है, whether it's being restored at the start of the period or at the end of the period makes no difference at all। आपने सिर्फ पेटी कैश बुक बनाते हुए उसको सबसे पहले रिस्टोर करने की ट्रांजैक्शन को भूलना नहीं है, ठीक है। और उस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग आपको पता है कि जब सीनियर जो है वो कैशियर और अकाउंटेंट जब आपको ट्रांसफर करता है पैसे, तो वो कैश बुक मेंटेन कर रहे होते हैं। दैट्स व्हाट जो है वो द इंटायर इम्प्रेस सिस्टम इज, कि जूनियर कैशियर है, आप उसको ट्रांसफर करते हो, उसने कुछ सर्टेन एक्सपेंडिचर्स हैं फॉर एन एंटायर मंथ या फॉर एंटायर पीरियड, जो भी पीरियड होगा, और वो उसने वो एक्सपेंडिचर्स उस पैसों में से करने होते हैं। अब कैश बुक गेट्स क्रेडिटेड, ऑब्वियसली वहां से पैसे आ रहे हैं, ठीक है, वहां से पैसे कम हो रहे हैं, एंड योर पेटी कैश बुक गेट्स डेबिटेड। अब आपने पेटी कैश बुक में जब उसको डेबिट करना है तो प्लीज डोंट फॉरगेट जो है वो राइटिंग प्रॉपर उसकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। एग्जामिनर सेज कि अगर मुझे जो है वो इसमें डिस्क्रिप्शन भी डिस्टॉर्टेड या किसी भी तरह की कोई डिफरेंट वर्ड्स मिलते हैं तो डोंट गिव यू मार्क्स फॉर दिस। आपने बिजनेस का बैंक अकाउंट वहां पे मेंशन करना है कि बिजनेस के बैंक अकाउंट से वो पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक हो गया एवरीवन, यही इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। और बाकी मुझे पता है आप सब लोग बाकी एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड कर लेते हो, वो मसला नहीं है। पेटी कैश बुक में बाकी जो पेटी कैश एक्सपेंडिचर्स होते हैं, यूर एबल टू रिकॉर्ड देम परफेक्टली, वो मसला नहीं होता। दी ओनली जो है वो पॉइंट वे यू लूज मार्क्स इज बच्चों ने स्टार्ट वाला इंप्रेस्ड अमाउंट की रिस्टोरेशन वाली एंट्री मिस कर जाते हो, ठीक है। उसमें आपने देखना है कि पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑलरेडी कितना पड़ा हुआ है और इंप्रेस्ड अमाउंट कितनी है। द डिफरेंस वुड बी द जो टोटल इंप्रेस्ड आपके अमाउंट, द डिफरेंस वुड बी जो अमाउंट आपको रिस्टोर होगी। आई होप आई मेड माई सेल्फ एब्सोल्युटली क्लियर है। नंबर 1 ठीक हो गया। और उसको आपने बैंक अकाउंट से ट्रीट करना है, और बैंक डिटेल्स में आप बैंक अकाउंट, डिस्क्रिप्शन में आप बैंक अकाउंट लिखोगे। सही हो गया। अच्छा, अदर देन दैट, अब अगर कैश बुक टेस्ट हो जाती है दोबारा, अभी जो है वो मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं, उसको एक दफा प्रैक्टिस भी कर लेना जाने से पहले। व्हाट इफ सिमिलर क्वेश्चन जो है वो आपको दोबारा टेस्ट हो जाए तो आपको आना चाहिए, ठीक है। कैश बुक में द मोस्ट कॉमन मिस्टेक दैट आई हैव सीन इज, एक तो नंबर 1 बच्चों याद रख लो, कैश का कभी भी आपका ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा, ना ही हो सकता है, ठीक है। मेक योरसेल्फ एब्सोल्युटली क्लियर। मैं वो पॉइंटर्स बता रहा हूं जो आप मिस्टेक्स करते हो। कैश विल नेवर हैव एन ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस या क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस, बात खत्म हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो कैश का विल ऑलवेज बी एन ओपनिंग डेबिट बैलेंस। ईसा, आई गेट योर क्वेश्चन, आप मुझे
जो है वो जस्ट राइट इट डाउन और टेक्स्ट कर दो, आई गेट योर क्वेश्चन दैट। ओके, अब आपने कैश बुक में बैंक का यूजुअली वो गिव्स यू एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस, वो आप स्टार्ट करोगे एंड देन आप रिस्पेक्टिवली बाकी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे। और मिस्टेक कहां पे नजर आती है? चेक डिसऑनर्ड। जो चेक डिसऑनर्ड होता है ना बच्चे, आपने उस चीज को भी बड़े ध्यान, उसकी डिस्क्रिप्शन में द एग्जामिनर सेज कि मुझे करेक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं मिलती, एंड व्हिच इज व्हाई जो है वो द स्टूडेंट लूजेस मार्क देयर। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है? एक चीज हमेशा याद रख लो, ओ लेवल अकाउंटिंग में, आईजीसीएसई अकाउंटिंग में, इफ देयर इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन किसी भी अकाउंट के नेम के साथ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, प्लीज जॉट देम डाउन। अगर आपने किसी भी अकाउंट नेम में इफ देयर इज एनी एडिशनल थिंग दैट यू नीड टू राइट, तो बच्चे आपने उसको ब्रैकेट्स में लिख देना है, ठीक है? आप उसको ब्रैकेट्स में लिख दोगे, प्लीज डोंट फॉरगेट अबाउट दैट। सही हो गया? तो अगर आपने डिसऑनर्ड चेक को लिखना है, राइट द नेम ऑफ द पर्सन, उसको ब्रैकेट्स में डिसऑनर्ड चेक लिखो, ठीक है? और व्हाटएवर द जो भी कस्टमर होगा, डेफिनेटली उसने आपके साथ डिसऑनर किया होगा चेक में, तो आपने उसका नाम भी मेंशन कर देना, और द कंपनी और व्हाटएवर दैट केस इज। क्लियर हो गई बात? अब क्वेश्चन 1 आपने, एंड देन कमिंग टुवर्ड्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आपने ऑब्वियसली यू नीड टू नो हाउ टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसका एक नॉर्मली जो है वो एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, जिसको आपने फॉलो करना है। यू स्टार्ट विद अपडेटिंग योर कैश बुक। आपने देखना है कि आपको कैश बुक अपडेट करने के लिए कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस गिवन है, या आपने प्रैक्टिस में करनी है चीजें, ठीक हो गया? डू प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बिफोर गोइंग टू सिट फॉर योर एग्जाम। उसके बाद आपने जब कैश बुक को अपडेट कर लेना है, देन यू नीड टू फिगर आउट कि आपके पास जो है वो कौन कौन से पॉइंटर्स हैं जो कि डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं इन द बैंक स्टेटमेंट, और आपने जो है वो उनको अपडेट करना। ठीक हो गया? जो तो कैश बुक में होंगे वो आप रिस्पेक्टिवली कर लोगे, सही है? एंड देन ऑब्वियसली प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब लास्ट ऑप्शन आपके पास क्या होती है क्वेश्चन 1 की, कि आपको वो डेटर एंड क्रेडिटर के जो टी अकाउंट्स बनवा देता है। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, देयर आर लोड्स ऑफ क्वेश्चंस इन द पास्ट पेपर जहां पे आपको मिल जाते हैं। डू प्रैक्टिस अ कपल ऑफ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस उसके भी प्रैक्टिस कर जाना कि तुम्हें टी अकाउंट्स बनाने आए। टी अकाउंट्स में आपने क्या चीज याद रखनी है? नेवर लीव अ टी अकाउंट ओपन एंडेड। याद रख लो, आपने उसको बैलेंस करके आना है, पीरियड। इवन इफ नॉट आस्क्ड फॉर, आपने बैलेंस करके, बैलेंस ब्रॉट डाउन देकर आना है, नो मैटर व्हाट, ठीक है? यू गेट अ मार्क फॉर इट। आपको जो ओन फिगर मार्क मिलता है, अगर आपका बैलेंस कैरी डाउन गलत भी है ना, तो बच्चे आपको उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन का मार्क मिल जाता है, दैट्स एन ओन फिगर मार्क, ठीक है? सो एग्जाम में तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ लूजिंग दैट मार्क अगर सिर्फ आप लिखते नहीं हो। सो क्वेश्चन नंबर 1 you're expected on bank reconciliation statement. You can expect a question on debtor and creditors T accounts, जो double entry test करेंगे आपकी, और you might get a question on books of original entry, जिसमें ज्यादा चांसेस petty cash book के हैं। Yes, यहाँ मैं ये भी बताता चलूं कि अगर आपको, क्योंकि अभी जो recent question आया था फरवरी मार्च वाला, उसने कैश बुक के साथ वो जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का जनरल क्वेश्चन होता था ना, टेबल वाला, जिसमें इफेक्ट ऑन कैपिटल और इफेक्ट ऑन प्रॉफिट वाला टेस्ट करता है, वो इस अटेम्प्ट में कर चुका है टेस्ट। आई डोंट एक्सपेक्ट हिम टू टेस्ट अगेन, बट नेवरदलेस डोंट लीव इट आउट, ठीक है? देयर इज नो, इसको रूल आउट नहीं करना द फैक्ट कि जो आपको दोबारा टेस्ट नहीं कर सकता। सो इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल वगैरह को देख के चले जाना, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट को वो जो ट्रांजैक्शंस देता है टेबुलर फॉर्म में, और वो चीज आपने याद से एड्रेस कर जानी है। हैविंग सेड दैट, क्वेश्चन 1 इज डन है। क्वेश्चन 2 जो है वो नॉर्मली, अब यहाँ पे वो ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है कि वो इसको वेरी भी करता है, कभी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्वेश्चन डाल देता है, कभी वो एडजस्टमेंट्स पे आ जाता है। अब लेट मी मेक इट क्लियर फॉर यू कि आपने 5 क्वेश्चंस में से बच्चे 2 क्वेश्चंस तो मिनिमम एक्सपेक्ट कर लेने हैं ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑन ड्राफ्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ड्राफ्टिंग पे भी मैं क्योंकि एंड पे बात करूंगा, ठीक है? जी बिल्कुल, फॉर एग्जाम्पल आई विल बी गेटिंग देयर, मैं जो है वो आपको उसमें भी एनपीओज वगैरह की तरफ आता हूं जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ आता हूं, ठीक है? अभी क्योंकि मैं क्वेश्चन वाइज एड्रेस करूं, इट वुड बी इजियर फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 2 वुड बेसिकली बी टेस्टेड, जो कि नॉर्मली टेस्ट होता है आपको वो एरर्स पर हो रहा होता है, ठीक है? विच इज एडजस्टमेंट्स टू द अकाउंट्स। अगर वो एरर्स पर नहीं पूछता तो फिर वो अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स पे आ जाता है। अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स में मैं बता देता हूं कि आपको लेटली जो है वो इन पर क्वेश्चंस आ चुके हैं।